ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس نے کھینچ کر صنف نازک کو قریب کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کسی پارٹی میں لے جانے کی ضد کر رہا تھا، لیکن وہ انکار کرتی جا رہی تھی۔ نہیں مانوں گی میں آپ کی بات۔ کیا آپ ہر بات پر اپنی چلاتے ہیں؟ وہ ڈھیٹ بن گئی تھی۔ وہ بالکل بھی لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ بھلا اپنے اندر کے خوف کو کیسے ختم کرتی جو اسے روک لیتا تھا؟ سوچ لیں اچھی طرح، کیونکہ محتشم کو اپنی بات منوانا اچھے سے آتا ہے، اور اس بات کا ثبوت آپ کی یہاں موجودگی ہے۔ وہ دیوانہ تھا، اس کی محبت میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اپنی بیوی کی نس نس سے واقف تھا۔ وہ پاگل لڑکی کسی وجہ سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب بھی راتوں کو ڈر سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ اسے بات منوانا نہیں، زبردستی کرنا کہتے ہیں۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اسے پاگل کر گئی تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر مجاز نے اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ سے نیچے اتارا تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ تمہیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں نڈر بننا ہوگا۔ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کیے وہ اسے خود میں قید کر گیا، اور اس قربت پر اس کی جان اٹکی تھی، زبان تالو سے لگی تھی۔ خود کو ہمیشہ اس نے سنبھال کر رکھا تھا۔ کانوں میں اس کی سرگوشیاں جان لینے لگی تھیں۔ اس کا شوہر اس کے دل و دماغ کی ہر چیز پڑھ لیتا تھا۔ ہم جائیں گے، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے اس گھر میں بہت خوش تھی۔ اتنی مدت بعد خوشیاں نصیب ہوئی تھیں۔ اب پھر سے انہیں ہاتھ دھونے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا میری بات مان لے، ورنہ مجھے بات منوانی آتی ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتا وہ آہستہ سے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کر گیا۔ اس کی بڑھتی گستاخی کو دیکھ کر جسم دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ آپ جو راتوں کو خوفزدہ ہو کر اٹھتی ہو نا، مجھے خود پر غصہ آتا ہے۔ کیسا شوہر ہوں جو اپنی بیوی کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا؟ کیا ہم ماضی کو برا خواب سمجھ کر بھول نہیں سکتے؟ اب کچھ بولیں گی نہیں آپ؟ کب سے تو اتنا بول رہی تھی، اب قریب آ گیا ہوں تو اب غصہ کریں مجھ پر؟ ایک ہاتھ سے اس کا نم چہرہ صاف کرتا وہ اس کی بھیگی پلکوں پر پھونک مارتا اس کی جان نکال گیا۔ ماریا کی صورت دیکھ کر اس کا چھت پھاڑ کہکہا گونجا۔ یونی میں انٹر ہوتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے آج معمول سے ہٹ کر چہل پہل ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی فیشن شو میں آئی ہو۔ لڑکیاں جو پہلے بھی میک اپ میں لدی ہوئی یونی آتی تھیں، آج ان کے انداز میں جیسے الگ ہی نزاکت محسوس ہوئی۔ ایسے بولڈ ڈریسز پہنے کچھ لڑکیاں اپنا میک اپ سیٹ کر رہی تھیں، تو کچھ لڑکیاں انہیں دیکھنے میں مصروف تھے۔ پہلے لڑکوں کو اپنی ضرورت کی خاطر کوٹھوں کا رخ کرنا پڑتا تھا، لیکن آج کل ان کا دھندا ان جیسی عورتوں نے سنبھال رکھا تھا۔ ڈیجیٹل طوائف اڈا بنا ہوا تھا۔ کچھ لڑکیاں اپنی خوبصورتی کو خود ایسے پیش کرتی ہیں کہ لڑکوں کی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ اس نے ناگواریت کا اظہار کرتے ہوئے قدم آگے کی جانب لیے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ اس فضول کاموں کے لیے خود کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اللہ کی حدود سے باہر نکلنا ہمیشہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی آج کیا خاص ہونے والا ہے یونی میں، اور وہاں اتنی بھیڑ کیوں جمع ہے۔ پھر کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہوگا۔ وہ ان سب میں کوئی عجوبہ ہی لگ رہی تھی۔ ان رنگوں میں نہائے وجودوں میں اس کا اپنا وقار تھا۔ وہ بھیڑ بکری بن کر گلے میں شامل ہونے سے بہتر الگ رہنا پسند کرتی تھی۔ وہ سب سے الگ الگ رہی تھی۔ سیاہ عبائے میں ہمیشہ کی طرح سب سے منفرد لگ رہی تھی، جیسے ان عام سے لوگوں میں کوئی شہزادی چل رہی ہو جسے اپنے وجود کی نمائش کرنا نامنظور ہو۔ وہ اپنے آپ کو قیمتی بنانا جانتی تھی۔ کھلی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ نمائش کا سامان تو بن سکتی ہیں، لیکن نسلی
और असली लोगों की पसंद नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हुए वो अभी क्लास में जा रही थी जब कुछ सोचकर वो नोटिस बोर्ड के पास रुक गई ताकि जान सके आज क्या खास हो रहा है। यूनी में क्योंकि उसे इर्द गिर्द के तमाशों से ज्यादा सरोकार नहीं था। आज सुबह ही उसने आने का दिल नहीं था, लेकिन पहले ही छुट्टियों से काफी नुकसान हो गया था। उसने यहाँ किसी से दोस्ती नहीं पाली थी, किसी को अपने करीब आने की इजाजत तक नहीं देती थी। काफी दिनों बाद आने के बावजूद उसकी चाल में जरा घबराहट न आई। वो न डर थी, घबराना नहीं आता था उसे। वो लोगों को घबराने पर मजबूर करती थी, आंखों ही आंखों से निगल लेती थी। तभी बहुत से लड़के उसे मुखातिब करने से भी डरते थे। उसने आज के दिन के लिए चिस्पा हुए नोटिस देखे तो होंठ ओ की शक्ल में गोल हुए। इतने बड़े दिन से वो कैसे बेखबर रह सकती है। कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसे ख्याल ही न रहा। ओह, तो इस यूनी के न्यू डिपार्टमेंट के इफ्तिताह के लिए बड़े बिजनेसमैन के इस्तकबाल में आज ये पार्टी रखी गई है। किसी ने इस यूनी को भी खरीद ही लिया। आज कोई क्लास भी नहीं होगी, तो हम क्यों आए हैं यहाँ? वापस चले जाते हैं, भला हमें क्या ज़रूरत पड़ी है वक्त ज़ाया करने की। अपना फ़ोन निकालकर चचा को कॉल करते हुए सोचा, उसे अभी बहुत काम करने थे। अब जब कोई क्लास ही नहीं थी यूनी में, तो यहाँ रहने का क्या फ़ायदा हो सकता था। वो ऐसी लड़की ना थी कि घर के कामों से भागकर बाहर अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया करे। दूसरी तरफ से चचा ने कॉल पिक ना की, शायद अपने किसी ज़रूरी काम में लगे होंगे। ये सोच आते ही तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाई। साइट पर स्टूडेंट्स के लिए वेलकम बैक का नोटिस लगा था और यूनी बंद होने की तारीख भी मेंशन थी। उसने गौर से उस नोटिस को देखा। शुक्र है अल्लाह का कि इतने दिन क्लासेस नहीं हुई, वरना हम कैसे टाइम मैनेज करते। पेंडिंग पर पड़ा काम पूरा करने में वो खुद से बात करने लगी। उसने अपना एतमाद बहाल किया और जाकर यूनी के बैक साइड पर बने एरिया में बैठ गई। चचा के बगैर वो किसी रिक्शे में घर जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। बैक एरिया में इस वक्त कुछ लड़कियां मौजूद थीं। वो एरिया बस लड़कियों के लिए मुख्तस था, तो अपना नकाब खोलकर गहरा सांस भरा। तभी फिर से फ़ोन की रिंग हुई। चचा की कॉल का सोचकर फ़ोन तो उठा लिया, लेकिन आगे से मिस नुदरत की चहकती आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। इस वक्त वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। मिस नुदरत यूनिवर्सिटी फंक्शन सोसाइटी की इंचार्ज थी। प्यारी, अगर तुम यूनिवर्सिटी आ गई हो तो फंक्शन में अपनी प्यारी आवाज़ का जादू जगा देना। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक और नाते करीम से होगा। कैसे लोग थे, नाच गाना करने से पहले भी खुदा का नाम ले रहे हैं। शैतान भी कंफ्यूज होगा कि इस मखलूक की क्या चाल है। उसे यहाँ की इंतज़ामिया पर शदीद कोफ्त होती थी। वो बिजनेसमैन भी ज़्यादा वेला था जो यहाँ चला आया। बेदिली से हामी भरते हुए बमुश्किल उठी। उसकी दो आदतें हमेशा उसे फंसा देती थी। पहला, वो कभी इनकार नहीं कर सकती थी। दूसरा, उसे झूठ बोलना नहीं आता था। सुस्त कदमों के साथ वो मिस नुदरत के सामने खड़ी हो गई। तुम काफ़ी अलग थलग सी रहती हो, क्या घरेलू मसाइल हैं? मिस नुदरत सालों से यहाँ इस शोबे में हर तरह के लोगों से मिलती मिलाती रहती थी। उनका कहना था कि वो पहली नज़र में लोगों को पहचान लेती हैं। नहीं मैम, मुस्कुराकर उन्हें इत्मीनान दिलाना चाहा। काश वो रुकने के बजाय रिक्शा लेकर घर जा चुकी होती, तो आज ये नौबत ना आती। ज़्यादा लोगों में उसे घुटन होती थी। मिस नुदरत की वजह से उसे फंक्शन में आना पड़ा। वो अपनी मुअज़्ज़िज़ टीचर को मना नहीं कर सकती थी। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि इस यूनी में जाने माने बिजनेसमैन आ रहे हैं जो बिल्कुल हीरो जैसे हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि देखते ही दिल धड़क उठता है। मैंने उन्हें तस्वीरों में देखा था यार, मेरा तो सांस ही रुक गया। कितने स्टाइलिश और डैशिंग है। उफ, आज इतने पास से देखूंगी मैं उन्हें। सोच सोच कर ही जान निकल रही है मेरी। बस एक बार वो आ जाएं तो उनकी नज़रों में आने की कोशिश करूंगी मैं।
लड़कियां ठंडी आहें भरने लगीं। एक लड़के पर पूरी दुनिया फिदा थी। ऐसा भी क्या खास हो सकता है? वो अपनी जिंदगी में आए रोज ऐसे अमीर लौंडों से मिलती रहती थी। सुनहरी दुकान के अंदर 2 नंबर मॉल से वो बखूबी वाकिफ थी। वो इवेंट की जगह पर खड़ी सजे हुए स्टेज को देख रही थी। पास से गुजरती हुई लड़की ने जो कमेंट यहाँ के चीफ गेस्ट पर पास किया, उसे सुनकर इसने हूं किया। क्या करोगी तुम उनकी नजरों में आने के लिए? दूसरी ने दिलचस्पी से सवाल किया तो उसने अपने बाल झटके। बस उनके इस्तकबाल में करीब जाऊंगी, फिर सैंडल में पांव अटकेगा और अपनी उंगली के गिर्द बाल लपेटते हुए उस लड़की ने अदा दिखाई। वहीं दूसरी लड़की ने उसकी बात को फौरन काट दिया। तुम पके हुए फल की तरह उनकी झोली में गिरोगी डायरेक्ट। यार प्लान अच्छा है वैसे, हो सकता है तुम्हारी सूरत उन्हें भा जाए और मुलाकातों का सिलसिला चल पड़े। कहानियों में भी तो अक्सर ऐसे ही हीरो और हीरोइन आपस में मिलते हैं। तुम भी तो इतनी प्यारी हो, सर को मर मिटना चाहिए तुम पर। उसके बेहुदा लिबास को तीसरी लड़की ने सताइशी नजरों से देखा। लिबास ऐसा था कि उसकी अपनी आंखें हया से झुक गईं। न जाने बाप भाई ने उसे इस लिबास में घर से निकलने कैसे दे दिया। अपर क्लास दूर से ही खूबसूरत लगती है। जितने करीब से वो उन्हें देख चुकी थी, उसे घिन आने लगी थी कि पढ़े लिखे लोग कितने जाहिल होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह कहकर वो वहाँ स्टूडेंट के लिए लगाई गई नशिस्तों पर जाकर बैठने लगी। अचानक उसके पास एक लड़की आई। मैम, आप प्लीज़ फर्स्ट रो में जाकर बैठें। आपका लिबास इस काबिल है कि आपको आगे बिठाया जाए, वरना यहाँ की लड़कियों की ड्रेसिंग देखकर सर स्टाफ को ही निकाल देंगे। प्लीज़ आप आगे जाएं। पुरफिकर लहजे में उसने इल्तिजा की तो ना चाहते हुए भी उसको आगे जाकर बैठना पड़ा। प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की चेयर्स दूसरी जानिब थी। उनको हैरत हुई कि इसे सिर्फ सबसे आगे बिठाया गया था, बाकी सब तो पीछे ही बैठ रहे थे। कुछ देर में तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। अभी चीफ गेस्ट के आने से पहले उन्हें अपनी बातें ख़त्म करने का मौका मिला था, क्योंकि उसके आने के बाद वो सीधा अपनी बात करता और तकरीब ख़त्म कर दी जाती। वो खामोशी से फ्रंट रो से उठकर स्टेज पर आ गई थी। यकदम से ही हॉल की स्पॉटलाइट में चीफ गेस्ट का इस्तकबाल किया गया। सब लड़कियां ठंडी आहें भरने लगी, लेकिन मारिया ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं था। खामोशी से वो इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका काम हो और वो पलटकर घर जा सके। मिस नुदरत की आवाज़ पर वो उठकर स्टेज पर गई और नाते पाक से ऐसा सहर बांध दिया कि सबके दिल पर असर होने लगा। इंटरेस्टिंग। मोहतशिम के होंठ गोल हुए। वो चादर में ढकी छुपी लड़की का दीवाना हो गया था। ऐसी हया बहुत कम देखने को मिलती है। जिस क्लास से वो ताल्लुक़ रखता था, वहाँ जिस्म की नुमाइश करना आम सी बात थी। सारे फंक्शन में उसकी निगाहें उसी लड़की पर रहीं। बेटा, तुम्हें भी सर्टिफिकेट मिलेगा। मिस नुदरत ने गाल थपथपाकर आगाह किया, कहीं वो भाग ही ना जाए। बेदिली से अपनी सीट पर आकर बैठ गई। मोहतरमा सुने। रबानी इंडस्ट्रीज़ का चश्मो चिराग इस छोटी सी लड़की से बात करने में झिझक रहा था। जी। मारिया को कोफ्त महसूस हुई। अपने नकाब को एक बार फिर से सेट किया, कहीं वो इसका चेहरा ना देख ले। मोहतशिम को उसकी एहतियात अच्छी लगी थी। मुझे आपसे बात करनी है। लोगों के जमे गफ़ीर में भला वो क्या ही बात कर सकता था। इज़्ज़तदार घराने की लड़की थी, उसकी बात का कहीं गलत मतलब ही ना निकाल लेती। फरमाएं। उसकी नज़र में मोहतशिम भी बाकी मर्दों की तरह दिल फेंक मर्द ही था। दुनिया के सारे अमीर लड़के एक जैसे होते हैं। आप मुझे अपना एड्रेस दे सकती हैं? मारिया ने चौंक कर उसे देखा। वो इसे पहचान तो नहीं गया? दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? आवाज़ कांपी थी। देखिए, गलत मतलब मत लें, लेकिन मैं रिश्ता लाना चाहता हूँ। पहली नज़र की मोहब्बत थी या इश्क, लेकिन वो उस लड़की के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
मैं आपको घर का एड्रेस नहीं दे सकती। मेरे ऑफिस का कार्ड रख लें। मैं एक शरीफ लड़का हूँ। आज तक मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई। आपसे निकाह करना चाहता हूँ। इनामात तकसीम किए गए। तकरीब ख़त्म हुई तो वो भी तेज़ी से भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल चुकी थी। जिंदगी में हर काम अच्छे के लिए होता है। यहाँ आने से पहले जितना बेजार था, अब दिल की हालत मुख्तलिफ थी। चचा को आने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी किसी बदतमीज़ी को बर्दाश्त करने की हिम्मत जो नहीं थी। दरवाजे में खड़ी औरत को देखकर उसका हलक तक कड़वा हुआ। कई दिन बाद उन्होंने मारिया का मुरझाया चेहरा देखा था। बचपन में उसे देखते ही उनकी बेटी भागकर गले लग जाती थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ थे। मारिया की माँ के जिस्म पर खूबसूरत साड़ी ज़ेब तन थी। आज भी वो उसकी माँ के बजाय बहन ही लगती थी। मारिया खामोशी से गुजरकर अपने कमरे में बंद हो जाना चाहती थी। भूख प्यास का एहसास खत्म हो चुका था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? उनके लहजे में इसके लिए फिक्रमंदी थी। मारिया ने सख्ती से अपने लब भेंचे, हाथों को आपस में उलझाया। अपने काम की मसरूफियात की वजह से वो 2 दिन घर पर ना आ सकी थी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करें। नफरत से एक हकारत भरी नज़र सामने खड़ी औरत पर डाली। उसे माँ कहते हुए भी मारिया को शर्मिंदगी महसूस होती थी। शायद वो किसी महफिल की शान बढ़ाने जा रही थी। तुम मुझसे अपनी नफरत कब तक कायम रखोगी? क्या उनके एक गुनाह की सज़ा सारी उम्र मिलती रहेगी? उनका दिल चाहा कि उसे गले से लगाकर अपने सीने की आग को ठंडा कर लें। जब तक मेरे जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है, उनका गंदा खून वो अपने जिस्म से निकाल बाहर करना चाहती थी। तुम मुझे हमेशा तकलीफ देती हो। मुझे सुनकर अच्छा लगा। सफाकियत की सारी हदें ख़त्म हो चुकी थी। जितनी तकलीफ में वो खुद थी, उन्हें बता भी न सकी। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तुम मेरा यकीन करो, खुद जैसा बनने नहीं दूंगी। तुम मेरे गुनाहों की सज़ा नहीं भुगतोगी। हाथ थामकर यकीन दिलाना चाहा। मारिया ने गुस्से से हाथ झटक दिया। अपने आप को आईने में देखना छोड़ दिया था। खुद से नज़र नहीं मिला सकती थी। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो अपने माजी को भूल सके। मुझे हाथ भी कैसे लगाया? अपने हाथ को मलने लगी। मेरे सामने आने की गलती मत किया करें आप। आपको देखकर मुझे खुद से मजीद नफरत होती है। अगर इस घर में रह रही हूं तो ये मेरी मजबूरी है। मुझे इतना तंग मत करें कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। मारिया की मां लड़खड़ाई। मारिया कमरे में बंद हो गई थी। काश वो अपनी मां को माफ कर सकती। माँ बाप की दहलीज पार करने का यही अंजाम होता है। मारिया सिसकने लगी। खुदा तो अपने बंदे को माफ कर देता है, लेकिन अफसोस खुदा के बंदे कभी भी किसी इंसान का माजी नहीं भूलते। जिंदगी के हर लम्हे उसे याद दिलाया जाता है कि वो गुनाह कर चुकी है। अपनी बिगड़ती हालत को सुधार कर उन्होंने बाहर का रुख किया। 3 दिन से वो उसकी कॉल का इंतजार कर रहा था। रब्बानी इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस पहली नज़र में किसी को दिल दे बैठा था, और वो लड़की उसे बहुत हल्के में ले चुकी थी। जाने मन, अगर तुमने आज कॉल ना की तो कल तुमसे रूबरू मुलाकात करनी पड़ेगी। मारिया उसके सब्र का इम्तहान ले रही थी। शुरू से इब्तिसाम को जो चीज़ पसंद आती थी वो छीन लिया करता था, लेकिन मोहब्बत के मामले में अपनी आदत के खिलाफ नरमी बरत रहा था। रिसेप्शन से उसे कॉल मौसूल हुई कि कोई मारिया नामी लड़की आपको मिलने आई है। शुक्र है तुम खुद आ गई। रब्बानी इंडस्ट्रीज की चकाचौंध से वो मुतासिर होने वाली नहीं थी। मैं यहाँ तुम्हें अपने घर का एड्रेस देने आई हूँ। मोहतशिम को उसका अंदाज मुतासिर किया। मारिया की आंखों में एक चुभन थी। हुसन आरा को नीचे दिखाने को वो यहाँ आई थी। वो क्या समझती थी कि हराम औलाद पैदा करके वो उन्हें दुनिया की नज़र से छुपा लेंगी।
मोहतशम से रात तक का इंतज़ार भी नहीं हुआ। अपनी मॉम को पहले से बता चुका था कि वो किसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। मिसेस दुरानी ऐसी औरत नहीं थी कि पैसे का फ़र्क देखें, बल्कि सबसे प्यार मोहब्बत से बात करने वाली मिलनसार खातून थी। गरीब मोहल्ले की सड़कों पर गाड़ी को उतारते साथ वो एक ऐसी गली में आ गया था जो तवाइफों का अड्डा थी। पर्दे में लिपटी वो मासूम सी लड़की भला यहाँ क्या करेगी? यकीनन एड्रेस ढूंढने में उसे कोई गलत फहमी हो गई है। अरे सूट वाले बाबू, किससे मिलने आए हो? मोहतशिम ने उसे दूर किया। क्या यहाँ कोई मारिया नाम की लड़की रहती है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? एक तवाइफ के दो रूप कैसे हो सकते हैं? अरे, आप गुड़िया रानी की बात कर रहे हैं। उनसे मिलने को पहले हुस्न आरा से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी ये धंधा नहीं करती। दिल को उसकी बात सुनकर जहाँ बेचैनी हुई वहाँ सुकून में असर हुआ। यहाँ से भाग जाता तो सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ना उसके बस में नहीं था। मारिया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो यहाँ कदम रखेगा। कहीं वो उसका सौदा करने तो नहीं आ गया। हुस्न आरा गौर से मारिया के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मोहतशिम ने एक नज़र उसे देखा। अपनी मोहब्बत में इतना आगे निकल आया था कि यहाँ से वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मजीद उसको इस दलदल में नहीं रहने दे सकता था। तुम इतनी जल्दी भूल गई कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? हुस्न आरा को सारा मामला समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। शक्ल से वो लड़का किसी अच्छे घराने का मालूम हो रहा था। हुस्न आरा बेगम, मैं आपसे मारिया के निकाह की बात करने आया हूँ। मारिया ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती हूँ। अब मेरी हैसियत देख ली है ना कि मैं कैसी लड़की हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ। हुस्न आरा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उनकी मारिया से कोई निकाह का ख्वाहिशमंद है, वरना अब तक जो भी आता था वो बोली लगाकर खरीदने को आता था। मैं खुद मोहतशिम से बात करना चाहती हूँ। मारिया, तुम अंदर जा सकती हो। मैंने आपको ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया कि आप मेरे फैसले लेने लग जाएं। इंतहाई बदतमीज़ी से मोहतशिम का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। यहाँ आकर वो चौंका ज़रूर था, लेकिन वो उसे बदल देगा। तो तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी? मोहतशिम अब पहले से पुरसकून अपने अज़ली अंदाज में सीने पर हाथ बांधे उसे पूछ रहा था। नहीं, मारिया ने हिम्मत करते हुए मजबूत लहजे में एक बार फिर इनकार किया। उसे तो लगा था कि हकीकत जान लेने के बाद वो खुद कभी पलटकर यहाँ का रुख नहीं करेगा। तो ठीक है, आज की रात इस घर में तुम्हारी आखिरी रात होगी। उसके बाद कभी भी तुम किसी भी तरह मुंह छुपाकर बच नहीं पाओगी। कल तक यूनिवर्सिटी का हर इंसान इस चेहरे के पीछे छुपी कहानी से वाकिफ हो जाएगा। उसके बाद लोग क्या करेंगे तुम बेहतर जान सकती हो। यहाँ से बहुत दूर, सबसे दूर। वो जितनी आराम से ये बात कह रहा था, मारिया उतनी ही बेयकीनी के आलम में उसे देखे जा रही थी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसने सोचा नहीं था कि गेम ऐसे भी पलट सकती है। कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। वैसे भी तवाइफ की कौन सा इज्जत होती है जो तुम मुझे रुस्वा करोगे? बगैर डरे आंखों में आंखें डालकर खुद एतमादी से बोली। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊँगा। घुटन सी महसूस हुई। वो लड़का क्यों उसके पीछे लग गया है? भला उसे लड़कियों की कोई कमी थी? मोहतशिम, तुम मेरी बात को समझो। हुस्न आरा ने मोहतशिम को बाहर आने का इशारा किया। मारिया, तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, तो इस मौके को मत गंवाओ। निकाह ख्वां को बुलाया गया। मारिया की हुस्न आरा ने एक नहीं चलने दी थी। मोहतशिम, तुम वाकई मर्द लगते हो जो दिल बड़ा करके एक तवाइफ को निकाह में लेना चाहते हो। लेकिन मारिया की माँ होने की हैसियत से कुछ बातें मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। मोहतशिम ने टांग पर टांग रखी। मारिया को कुछ लड़कियां तैयार करने को ले गई थी।
آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ میں جب اس طوائف اڈے پر آئی تو میری عمر 18 سال تھی۔ غریب مزدور کی بیٹی تھی۔ محبت کے چکر میں گھر سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ تب سے اس دلدل میں پھنس گئی۔ ماریا کا باپ کون ہے اس کا مجھے بھی علم نہیں، لیکن میں نے ماریا کی تربیت اچھے سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ دوسری حسن آرا نہیں بنے گی۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ ان کا لہجہ کپ کپ آ رہا تھا، شاید ماضی کی دھول مٹی گلے میں پھنس گئی تھی۔ آپ پانی پی لیں۔ محتشم کو ان سے ہمدردی ہوئی۔ اب ماریا کے حوالے سے وہ انہیں عزیز تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ماریا کو میں نے کوٹھے سے دور ایک کوارٹر میں پناہ دے رکھی تھی۔ اس نے اپنی ساری پڑھائی وہاں مکمل کی ہے۔ اسے حقیقت سے زیادہ عرصہ بے خبر نہ رکھ سکی۔ وہ پاک صاف ہے، کوئی مرد آج تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ آپ کو ماریا کی پاکیزگی کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں۔ اسے اپنی محبت پر اعتبار تھا۔ محبوب کی محبت میں راہ عشق میں خاندان سے بغاوت کرنے والی لڑکی، جو عزت کی پائل کو پاؤں کی بیڑیاں سمجھتے کب گھر کی عزت کو اپنے نرم و ملائم پاؤں تلے روند نکلی تھی۔ باپ کی پابندیوں کو بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ رات کی اندھیر نگری میں عاشق کے قدموں کے نشان پر وہ اپنے قدموں کی چھاپ چھوڑے جا رہی تھی، پورا انتظام چھوڑے جا رہی تھی۔ عشق و محبت نے اس کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی تھیں۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بائک کے پاس وہ اپنی چادر لپیٹے کھڑا تھا۔ عشق ذات پات رنگ روپ دیکھ کر تو نہیں ہوتا، ورنہ اس کے محبوب میں کچھ خاص نہیں تھا۔ لوگ اسے پلٹ کر دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کی وہ چادر جو اس کے قدموں کے نشانوں کے ساتھ اس برآمدے سے وہ صحن صاف کرتی جا رہی تھی، جہاں اگلے روز بدنامی سے مرنے والے باپ کے جنازے مرنے کے بعد بھی ذلیل و رسوا ہوتے رہ جانا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ محلوں میں راج کرنے کو بنی ہے۔ اس گھر کی چار دیواری میں قید کر کے اس کا باپ اسے مار دینا چاہتا ہے۔ اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ مسکرا کر جذبات میں اسے گلے لگایا۔ اس بے وقوف لڑکی کو بیچ کر وہ اچھا خاصا امیر ہونے والا تھا۔ وہ عشق زادی جو محبوب کے چند روزہ محبت کے پیچھے جلا آئی تھی، سب کشتیاں واپسی کی۔ اب ہم کدھر جائیں گے؟ بائک پر بیٹھ کر چادر سنبھالی۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ جتنا زیور اس کی ماں نے جمع کیا تھا وہ اٹھا لائی تھی۔ میری خالہ کا گھر خالی ہے، وہیں رکیں گے۔ چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ آنے والے حالات سے بے خبر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ سفر کرنے لگی۔ اپنے فعل کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ محبت کی دیوی جو چلتے چلتے کب 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کسی محبت کے پیچھے زینت بن گئی تھی اس حسن بازار کی، اور وہ محبوب کب محبوب سے دلال بن کر سودا کرایا تھا اس محبت کی دیوی کا۔ باپ کا گھر چھوڑ کر ہی عقل آئی کہ گھر کی 4 دیواری کے باہر کی رنگین دنیا کیسی ہے۔ یہ کیسا گھر ہے؟ گھر کے باہر چراغاں تھا۔ رنگ برنگی عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ مدھم جلتی روشنیوں میں رقص کرتی حسینائیں، ارد گرد اندھیرا اور ان پر روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ کیا خوفناک ماحول بنا رکھا تھا۔ اپنے حسن کے تیر چلاتی وہ بجلیاں گرا رہی تھیں۔ وہاں موجود تمام عزت دار افراد مدہوشی کے عالم میں ان کے رقص سے لطف اٹھا رہے تھے۔ کچھ پیسے لٹانے میں محو تھے، کچھ شراب نوش فرما رہے تھے۔ تم اندر چلو، میری محبت تمہیں اپنے حصار میں لے لے گی۔ اس کا گورا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اندر لے آیا۔ منہ میں پان چباتی عورت نے اس کی کافی تعریف کی۔ لڑکی، جانتی ہو یہاں کیوں لائی گئی ہو؟ نہیں۔ اماں ابا کی یاد شدت سے آئی۔ ان لوگوں سے خوف محسوس ہونے لگا، ماحول سے گھن آنے لگی۔ طوائفوں کے اڈے میں کھڑی ہو؟ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی چیخو پکار پر کسی پر بھی اثر نہ ہوا۔ بار بار اپنے محبوب کا نام پکار رہی تھی جو اسے دیکھنے کے بجائے نوٹوں کی گڈی کو گن رہا تھا۔
2 सेहतमंद आदमी उसे खींचते हुए कमरे में बंद कर चुके थे। उसका महबूब आशिक उसे छोड़कर यहाँ से जा चुका था। खूबसूरत लड़कियों को फंसाकर यहाँ लाने का काम उसके जिम्मे रहा था। बेशक शक्ल सूरत खराब हो, लेकिन बातों को अच्छा बनाना जानता था। लड़कियों के दिलों के साथ कैसे खेलना है उसे खूब मालूम था। और अब वो हुस्न की देवी एक तवाइफ ज़ादी थी, उस हुस्ने बाजार की। अब पाँव में पायल की छन छन नहीं होती थी, अब पाँव में घुंघरुओं की छन छन गूंजती थी। जब वो रक्स करती थी कोठे पर आए तमाशाइयों के सामने तो सबकी राल टपकने लगती। दूर से लोग उसका रक्स देखने आते थे। हुस्न आरा, ये बात अब उसकी पहचान थी। पछतावे की सज़ा में खुद को रोज़ दरिंदों के सामने पेश करती थी। उसकी यही सज़ा बनती थी। अपने मजदूर बाप को छोड़ कर आने की उससे भी ज़्यादा भयानक सज़ा होनी चाहिए थी। अब वो तवाइफ ज़ादी, वो खूबसूरत तवाइफ जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, इस कोठे पर सिर्फ कुछ वक्त गुजारी के लिए नीलामी होती है उसके अपने वक्त की। और चर्चे कितने किए जाते हैं उसके हसीनो जमील हुस्न के। वक्त के पन्नों के वर्क उलटते हैं और मिलते जुलते हैं उस तवाइफ ज़ादी से। उसकी कोख से नन्ही परी ने जन्म लिया था। वैसे तो यहाँ के बच्चे कोख में ही मार दिए जाते थे, लेकिन मालकन को हीरे की खूब पहचान थी। जानती थी कि हुस्न आरा उन्हें नायाब हीरे से नवाज सकती है। मारिया ने किसी से मिलना ज़रूरी नहीं समझा। अलबत्ता मोहतशिम ने हुस्न आरा को पूरा यकीन दिलाया था कि वो इसे खुश रखेगा। निकाह करके उसे अपने आशियाने में ले आया। गुम सुम सी आने वाले हालात से तंग हो चुकी थी। हुस्न आरा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मारिया को उस औरत पर आज भी रहम नहीं आया था। वो तुम्हारी माँ है। नाजायज़ औलाद हूँ। गोया खुद पर हंसी। ज्यादा बहस नहीं की, खामोशी से गाड़ी से उतरने का इशारा किया। मैं तवाइफ ज़ादी हूँ, मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो? फिंकारते हुए बेकाबू सी हुई। ये घर उसकी आर्जी रिहाइश का थी, वो अमीर बिजनेसमैन की। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो और कुछ भी तुम्हारी पहचान नहीं। कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया। मिसेस दुरानी ने उनका अच्छे से इस्तकबाल किया। तुम आज से मेरी बेटी हो, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इससे कोई सवाल नहीं किया था। मोहतशिम के हमरा अपनी बहू को कमरे में छोड़ आई। तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? कब मुझे छोड़ोगे? सर को हाथों में थाम कर वो दुनिया भर से बेजार लगी। मोहतशिम का दिल किया वो उसके करीब होकर उसके वजूद की सारी थकान समेट ले। आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब बैठ गया। मैंने निकाह तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं किया। उसको अपने हिसार में लेकर करीब किया, हाथ बढ़ाकर लाइट बुझा दी। उस वक्त मजीद वो लफ्ज़ों के बजाय अपने अमल से एहसास दिलाना चाहता था कि वो इसके लिए काफ़ी ख़ास है। मारिया पहले थोड़ी देर एतराज़ करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी जिद्दोजहद ख़त्म हो चुकी थी। आप मेरे लिए दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत हो, आंखों पर बारी बारी लब रखते हुए एहसास दिलाया। मेरा दिल चाह रहा है खुद में ऐसे छुपा लूं कि हवा भी तुम्हें ना छू सके। मारिया आंखें बंद किए उसकी सरगोशियां सुन रही थी। कोई शख्स उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? खुद को आइंदा कभी बुरा भला मत कहना। अगली सुबह वो मुस्कुराते हुए अपने पहलू में लेटी हुई अपनी मोहब्बत को देख रहा था। वो इतनी आसानी से इसे मिल गई थी। मारिया जाग तो काफ़ी देर की चुकी थी, लेकिन मोहतशिम से बचने को करवट बदल ली। मेरी बीवी, ये जुल्म है। आप अपना हसीन चेहरा और उस पर बिखरे रंग मुझसे छुपा नहीं सकती। वो शर्माकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। मारिया आजकल की लड़कियों से मुख्तलिफ थी। यही आदतें तो मोहतशिम को भा गई थी। इतने सालों बाद बग़ैर डरे और रोए उसने पुरसकून रात गुजारी थी। मिसिस, आप मुझसे शर्मा रही हैं? मारिया की पाकीज़गी की गवाही तो वो दे सकता था।
उसकी बेगम हद से ज्यादा शर्मीली वाकया हुई थी। आप बदल तो नहीं जाएंगे? अगर वो बदल गया तो इसे दोबारा से उन गलियों में जाना पड़ेगा। कयामत अभी इतनी करीब नहीं है कि मोहतशिम बदल जाए, दूबदू जवाब दिया। इतने सालों बाद मेरे कानों में घुंघरू की आवाज़ नहीं पड़ी। मैं पुरसकून नींद सोई हूँ। ये सब आपकी बदौलत है। मोहतशिम ने उसकी पेशानी चूमी। मिसेस दुरानी ने नाश्ते की टेबल पर अच्छा खासा इंतज़ाम कर रखा था। अपनी शर्मीली और मासूम सी बहू के सदके वारी जा रही थी। मारिया को नहीं पता था कि उसने अपनी माँ को उसके मुतल्लिक क्या बताया है, लेकिन कम से कम वो इनसे कोई सवाल नहीं कर रही थी। बेटा, शर्माने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम अपनी मर्जी का नाश्ता करो। मोहतशिम हर थोड़ी देर बाद उसके कान में कोई सरगोशी करता, अपने हाथों से उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल देता था। मिसेस दुरानी की दोस्तों के सामने जाने से वो बहुत घबरा रही थी। अभी मोहतशिम भी घर नहीं आया था। अगर वो होता तो हमेशा की तरह सब कुछ संभाल लेता। आंटी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? बेदिली से अपने सर पर अच्छे से दुपट्टा जमाकर कमरे से बाहर निकली। लाउंज में औरतों की खुशगपियों की आवाज़ें गूंज रही थी। बोलो, जानते थे ना तुम कि वो तवाइफ है? वो काटदार लहजे में मुस्तफसिर हुई। अपने लहजे की नरमी को सख्ती में बदला। मुलाजमा से कहकर सारे बर्तन भी फेंक चुकी थी जिसमें उस वेश्या ने खाना खाया था। अपनी सोसाइटी में उनका मजाक बन गया था कि हुस्न आरा की बेटी को वो अपने इकलौते बेटे के लिए बहू बना कर ले आई हैं। हाँ, जानता था मैं, लेकिन उसको इस घर से निकालने का हक किसी को नहीं। और भूल गई आप कि आपने ही मुझे शादी का मशवरा दिया था। कल तक तो आपको मेरी बीवी की हैसियत से वो काफ़ी अजीज थी। उसकी हैसियत आज भी नहीं बदली। वो उनकी बात के जवाब में बुलंद आवाज़ से कहता हुआ उनको याद दिला रहा था। तो मुझे क्या पता था कि वो तवाइफ है? अगर मुझे ज़रा भी भिनक लगती तो मैं कभी उसको तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल ना करती। तुम हमारे इकलौते चश्मो चराग हो। मोहतशिम, मैं किसी सूरत उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना तुमने? तुम उसको फौरन तलाक दो। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। 2 दिन से वो घर में कैद थी कि लोग उनका मजाक बनाएंगे। मॉम, बस। मोहतशिम ने हाथ उठाकर अंगश्ते शहादत उनके आगे लहराई। एक लफ्ज़ और नहीं। अगर आपने अब कुछ ऐसा कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। अपनी बीवी की पाकीज़गी की गवाही वो खुद दे सकता था। वो लड़की तो अपने शौहर के सामने भी शर्माती थी। मारिया पर न जाने क्या गुजर रही होगी। उसकी आंखों में शोलों की सी लपक थी। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मोहतशिम की माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। अपने बेटे का ऐसा लहजा कभी उन्होंने पहले नहीं देखा था। एक तवाइफ की मोहब्बत में क्या उनका बेटा इतना आगे निकल गया था कि माँ की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। आपसे पहले मैं उसको जानता हूँ। मुझे मालूम है कि उसका किरदार कैसा है। मुझे उसके माजी से कोई सरोकार नहीं कि वो कभी तवाइफ रह चुकी है। वो शौक से तवाइफ नहीं बनी थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर मोहतशिम ने उन्हें बोलने का मौका ही ना दिया। वो जितना कर चुकी थी उतना ही काफ़ी था। पता नहीं वो किधर चली गई होगी। वो इसे कहाँ तलाश करेगा। खैर, मुझे बस मेरी खुशी अजीज़ है और मेरी खुशी उसी के साथ में है। आपने अच्छा नहीं किया मॉम, उसको इस घर से निकाल कर। मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अगर मेरी बीवी की इस घर में गुंजाइश नहीं तो बेफिक्र रहें, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। उसको लेकर अलग घर में रह लूँगा। वो दांत पर दांत जमाते उनको बावर कराता जाने के लिए पलट गया। रश ड्राइविंग करता वो सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। हुस्न आरा से मालूम कर चुका था, लेकिन मारिया तो वहाँ अब तक नहीं गई थी। मेरा इंतज़ार कर लिया होता। क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा इत्मीनान नहीं था? मुल्की हालात भी ख़राब थे। हर जगह से पता करवा लिया, लेकिन कहीं से कुछ अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली थी।
जी हुस्नारा आंटी। बेटा मुझे पता लग गया है वो कहाँ है, तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, जल्दी से वहाँ पहुँच जाना। हुस्नारा मारिया के लिए काफ़ी परेशान थी। बेचारी ना जाने सुबह से कहाँ भटक रही होगी। घर से निकाले जाने के बाद वो सड़क पर यूं ही घूम रही थी। उसे यकीन था कि मोहतशिम उसे ढूंढ निकालेगा। मारिया को अब तक यकीन नहीं आया कि अल्लाह उसे इतनी बड़ी नेमत से नवाजने जा रहा है। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। आप सच कह रही हैं ना? डॉक्टरनी का हाथ थामकर खुशी से बोली। मोहतशिम को देखकर भागती हुई बगैर किसी की परवाह किए उसके सीने से लग चुकी थी। आपने मुझे ढूंढ लिया। मुझे यकीन था कि आप मुझे तलाश कर लेंगे। डॉक्टर बिजनेसमैन मोहतशिम को वहां देखकर काफ़ी हैरान हुई। मैं बहुत खौफजदा हो गया था। तुम हुस्नारा आंटी की तरफ क्यों नहीं गई? मारिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मर कर भी उस जगह नहीं जाना चाहती थी। हुस्नारा के लिए उसके दिल में कोई नरम गोशा नहीं था। मोहतशिम की माँ ने अपने पोते का सुनकर भी कोई नरम दिली पैदा नहीं की थी। उनकी सिर्फ एक ही रट थी कि मारिया को तलाक दे दी जाए। वो इस लड़की को या उसके खून को अपने घर का वारिस नहीं बनाएंगी। मोहतशिम ने भी पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपनी माँ को एक दिन मना कर ही रहेगा। मारिया के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल थे। अब तो उनके आंगन में जल्द नया फूल खिलने जा रहा था। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस आप हुक्म करें, मारिया ने मुस्कुरा कर कहा। जिंदगी में पहली बार वो दीवाना उससे कुछ मांगने जा रहा था। तुम हुस्नारा आंटी को माफ कर दो। मोहतशिम की बात पर काफी देर उसे देखती रही। देखो, उन्होंने अपने गुनाहों की सजा को पा लिया है। उनकी आंखों में शर्मिंदगी देखी है। वो तुम्हें गले लगाने को तड़प रही हैं। अपनी माँ को इतना मत सताओ। कुछ महीने बाद तुम खुद माँ बन जाओगी। वो इसे जबरदस्ती कायल तो नहीं कर सकता था, लेकिन हुस्नारा बेशक अच्छी बेटी ना बन पाई हूं, लेकिन एक अच्छी बेहतरीन माँ साबित हुई थी। मारिया को हमेशा से एक अच्छा माहौल दिया था। मैं उन्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन उनके साथ अपना रवैया बदलने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। मोहतशिम उसकी बात से खुश हुआ था कि चलो उसके कहने पर ही सही, लेकिन मारिया ने हुस्नारा को माफ़ तो कर दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।